Hello students. So this is clavicle bone. Now we are going to study clavicle and its part, that is introduction, site determination, parts, surfaces and borders, muscle and ligaments. So this is superior view of clavicle bone. This is inferior view of clavicle bone. This is anterior view and posterior view. So clavicle has these divisions, and more divisions are ossification, blood, nerve supply, functions. So introduction. Clavicle is a long bone placed horizontally in our body. Means एक लौती ऐसी बोन है, वो है clavicle, जो अपने पूरे बॉडी में हॉरिजॉन्टल प्लेस होती है. मीन्स दिस इज आवर बॉडी एंड दिस इज clavicle bone, जो कि horizontally placed है in our body. Act as strut between upper limb and trunk, a support that stabilizes. Upper limb और trunk के बीच में support का काम करती है clavicle bone. So how it supports? It connects medially manubrium of sternum and laterally acromion of scapula. How? So this is manubrium and this is clavicle. Manubrio-clavicular joint, acromio-clavicular joint. Okay, so only bony connection between upper and axial skeleton. This is upper skeleton, axial skeleton and appendicular skeleton के बीच में only bony connection है जो कनेक्ट कर रहा है axial skeleton को और appendicular skeleton को. And this is the only bone which is placed subcutaneously. Means हम उसे palpate कर सकते हैं ऊपर से, तो वो palpate होती है. कौन सी bone? Clavicle. This is subcutaneous throughout, easily palpable. Now side determination. How you determine the side of clavicle? So at lateral end it is flat, and in medial end it is bulky and quadrangular in shape. Its shape is S-shaped. Medial two-third is convex forward and concave laterally. So how? This is superior view and this is right clavicle. So 1/3 medial, 2/3 part is convex and lateral 1/3 part is concave. So ऐसे हम साइड डिटरमाइन करेंगे. नाउ कोनॉइड ट्यूबरकल, जो कोनॉइड ट्यूबरकल है वो नीचे रहेगी, पोस्टीरियरली रहेगी एंड नियर लैटरल एंड रहेगी. इंफीरियर, नियर लैटरल एंड पोस्टीरियर. सो ये हो गया साइड डिटर्मिनेशन. फर्स्ट लैटरल फ्लैट एंड, medial quadrangular and bulky end, S-shaped is shaft, and conoid tubercle near posterior side, inferior side and lateral side. Now parts of clavicle: medial part, shaft and lateral part. So medial part I told you thick and quadrangular है, articulates with manubrium and first costal cartilage, that is first rib, forms sternoclavicular joint. शाफ्ट कैसा है? एस शेप है, मीडियल 2/3 पार्ट में डिवाइडेड है एंड लैटरल 1/3 पार्ट में. नाउ लैटरल पार्ट कैसा है? फ्लैट, आर्टिकुलेट्स विथ acromion process of scapula, forms acromioclavicular joint. So this is acromioclavicular joint and this is clavicle. Surfaces and borders of clavicle. So there are two surface and two borders. Surface is superior surface and inferior surface, and borders are anterior border and posterior border. यहाँ पे muscle attachment हम देखेंगे आगे. So superior surface पर क्या है? Superior surface हम कैसे पहचानेंगे? वो smooth होगा, lies under the skin, एंड यहाँ पर एक मसल ज्वाइन होगी, दैट इज स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड.
कैसे? दिस इज सुपीरियर सरफेस ऑफ राइट क्लैविकल, यहाँ पे है ये मसल पेक्टोरलिस मेजर, दिस इज स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, दिस इज स्टर्नोहायोइड मसल, ओरिजिनेशन हो रहा है यहाँ से मसल्स का. दिस इज एंटीरियर बॉर्डर एंड दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर. सो सरफेसेस, सेकेंड सरफेस, इंफीरियर सरफेस पर क्या क्या है? सबक्लेवियन ग्रुप जहां पर सबक्लेवियस मसल है, कोनॉइड ट्यूबरकल जहां पे कोनॉइड लिगामेंट है, ट्रेपेजॉइड लाइन पर ट्रेपेजॉइड लिगामेंट है, इंप्रेशन फॉर कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट हो गया यहाँ पे. कैसे? दिस इज सबक्लेवियन ग्रुप, दिस इज सबक्लेवियस मसल, दिस इज ट्रेपेजॉइड लाइन, यहाँ पर है ट्रेपेजियस मसल पोस्टीरियरली, और एंटीरियरली एंटीरियर बॉर्डर पे क्या रहेगी? डेल्टॉइड क्लैविक्यूलर पार्ट, डेल्टॉइड मसल का क्लैविक्यूलर पार्ट. नाउ मसल्स एंड लिगामेंट्स ऑफ क्लैविक मसल. डेल्टॉइड हमने देख ली, ट्रेपेजियस, सबक्लेवियस, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, पेक्टोरलिस मेजर, स्टर्नोहायोइड. दिस इज सबक्लेवियस, trapezius, deltoid, pectoralis major, sternocleidomastoid, sternohyoid. ओके, नाउ लिगामेंट्स. लिगामेंट्स कौन सी है? यहाँ पे हम लिगामेंट्स की पिक्चर देखेंगे. कौन सी लिगामेंट है? कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, इंफीरोमीडियल क्लैविकल, इंटरक्लैविकुलर सुपीरियर मीडियल एंड पर है, कोनॉइड लिगामेंट कोनॉइड ट्यूबरकल से अटैच हो रही है, ट्रेपेजॉइड लिगामेंट ट्रेपेजॉइड लाइन से अटैच हो रही है, एंड कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट ये कोनॉइड प्लस ट्रेपेजॉइड से बन रही है लिगामेंट. कैसे? दिस इज इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट, दिस इज स्टर्नोक्लैविकुलर लिगामेंट, this is costoclavicular ligament, this is acromioclavicular ligament, this is trapezoid ligament, this is conoid ligament. So ossification कैसा है clavicle का? Now ossification पे आते हैं. Type is membranous ossification. हाँ, यूनिक फॉर अ लॉन्ग बोन. मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन है, एक लॉन्ग बोन के लिए ये ऑसिफिकेशन यूनिक है. प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर इसमें दो है, appears in 5th to 6th week of intrauterine life, and secondary ossification center medial end पर 18 to 20 years पे complete होता है, fused completely about 25 years. First ossify and लास्ट फ्यूज, मतलब ये ऐसी बोन है जो ऑसिफिकेशन इसका फर्स्ट स्टार्ट होगा सबसे पहले एंड एंड होगा सबसे लास्ट में. नाउ ब्लड सप्लाई ऑफ क्लैविकल इज सुप्राक्लैविकुलर आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी सॉरी, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी. नर्व सप्लाई सुप्राक्लैविकुलर नर्व्स C3 and C4. Now functions act as a strut. Strut means support, keeps shoulder away from thorax, keeps shoulder away from thorax, मतलब इसको अवे करने में हेल्प करता है शोल्डर को, और सपोर्ट देता है जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है उसको अपेंडिकुलर स्केलेटन पर वो वेट ट्रांसफर करता है. अपेंडिकुलर स्केलेटन का वेट एक्सियल स्केलेटन पर ट्रांसफर करने में हेल्प करता है. ट्रांसमिट्स वेट ऑफ upper limb to axial skeleton, protects neurovascular structures, allow free movements of shoulder. Now most important part, applied aspects. Applied aspects, fractures of clavicle most common at junctions of medial 2/3 part and lateral 1/3 part. Displacement, medial fragment pulled upward by sternocleidomastoid muscle, lateral fragment pulled downward by weight of limb. मतलब ये हमारी क्लैविकल है, इस पे अगर फ्रैक्चर हो गया तो ये जो पार्ट है
ये जाएगा हमारा ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मसल अटैच है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, और ये जाएगा पार्ट नीचे क्योंकि यहाँ पर वेट बियर कर रहा है। ओके, सो रिजल्ट ड्रॉपिंग ऑफ शोल्डर, ड्रूपिंग हो जाती है शोल्डर की। नाउ सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीडोक्रेनियल डिस्टोसिस। क्लीडो मीन्स क्लेविकल, क्रेनियल मीन्स क्रेनियम और स्कल, डिस्टोसिस मीन्स एबनॉर्मल बोन। क्लेविकल और स्कल की बोन एबनॉर्मल हो जाती है यहाँ पे। कंजेनाइटल एब्सेंस और हाइपोप्लेजिया ऑफ क्लेविकल, एब्सेंस हो सकती है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्लेविकल में। पार्शियल और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ क्लेविकल। शोल्डर्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड इन मिड लाइन। थैंक यू।